Good morning to all of you. Class 6th, subject Social Science, Chapter 6, New Questions and Ideas. Dear students, आप अपनी बुक का पेज नंबर 59 निकालेंगे। वहाँ से आज हम पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। Around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answers to difficult questions. तो जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। Some of them wanted to know about life after death. Others wanted to know why sacrifices should be performed. तो उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. They described this as the Atma or the individual soul and the Brahman or the universal soul. They believed that ultimately both the Atma and the Brahman were one. तो उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का ये मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रहा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अतः आत्मा तथा ब्रहा एक ही है। Many of their ideas were recorded in the Upanishads. These were part of the later Vedic text. Upanishads literally means approaching and sitting near, and the text contain conversations between teachers and students. Often these ideas were presented through simple dialogue. तो ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। किसके समीप बैठना? गुरु के। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्राय ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। Most Upanishadic thinkers were men. Especially Brahmins and Rajas. Occasionally, there is mention of two thinkers, such as Gargi, who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts. तो इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राजदरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करते थे। Poor people rarely took part in these discussions. One famous exception was Satyakama, Jabala, who was named after his mother. The slave woman Jabali, he had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin teacher named
Gautama and became one of the best known thinkers of the time. तो निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते हैं। इस तरह का एक प्रसिद्ध उपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम तो सत्यकाम जाबाल जो था उसका नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था और सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नाम का एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। Many of the ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinkers Shankaracharya, about whom you will read in class 7th. तो उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। अब उसके बाद है आगे जैनिज्म। अब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। The last and 24th Tirthakar of the Jainism, Vardhamana Mahavira, also spread his message around this time, such that 2500 years ago he was a Kshatriya prince of the Lichavis, a group that was part of the Vijay Sangha, about which you read in chapter 5. At the age of 30, he left home and went to live in a forest. For 11 years, he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. तो इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह विज संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जितना बच्चों आज मैंने आपको पढ़ाया है आप उसको दोबारा रीड करोगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।